हाँ जी, सभी को नमस्कार। अंतिम नमस्कार। इस सत्र के अंतिम बोर्ड साफ करना। बताइए, जब तक बोर्ड साफ होता है तो आपके मन में कुछ शेयर करने का हो तो बोलिए। हाँ जी, माइक माइक। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भैया। ऐसे तो पूरी शिविर में पूरे दिमाग में से जो चल रहा था डाउट क्लियर हो गया। फिर भी छोटा सा क्वेश्चन है कि आजकल बर्थडे और वो सब में केक वेस्टर्न केक का एक मिनट। केक काटने की ये मना कर रहे हैं क्या? बोर्ड साफ नहीं करना है? 2 मिनट रुक जाइए। ये वाला भी नहीं करना है? 5 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट रुक जाइए। केक काटने का एक मिनट पहले इनकी बात कर लेते हैं ताकि ओके बोर्ड साफ हो जाएगा। ओके आप ठीक। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो जी। हेलो। हाँ, मैं भैया जी रिक्वेस्ट है कि ये लास्ट वाला सेशन जो है तो दशरथ भाई अगर 5 मिनट में गुजराती में उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते, उसके बाद में ये सफाई होती तो अच्छा रहता। આ બોર્ડની વાત કરો તમે? કાલે આપણે આ વાત તો કરી હતી, બરાબર છે? ગ્લોબલ વોર્મિંગ કેવી રીતે થાય છે અને ફેમિલી વોર્મિંગ કેવી રીતે થાય છે એ વાત કરી હતી. એની જરા મોટી મોટી વાત કરી લઉં. આ જે લાલ કલરના એરો છે ને એ શું બતાવે છે કે બ્લેક કલરના એરો છે એ એવું બતાવે છે કે માણસ આ બધાનો ઉપયોગ કરે છે. અહીંયા લેવાનું દેવાનું, આ લેવાની વાત છે, આપવાની વાત છે, એ લાલ કલરના એરો છે. એટલે જે જગ્યાએ લાલ કલરના આ એરો છે એનો મતલબ ત્યાં કઈ વસ્તુ પાછી અપાતી નથી. અને આ બ્લેક કલરના એરો છે તો બંને જગ્યાએ પદાર્થ અવસ્થા અને પ્રાણ અવસ્થા એકબીજાને પૂરક અને ઉપયોગી છે. એ આપે પણ છે ને લે પણ છે. એવી રીતે પદાર્થ અને જીવ એ પણ એકબીજા સાથે શું છે કે લેવાની આપવાની બંને પ્રક્રિયા કરે છે. જીવ અને પ્રાણ એટલે પશુ પક્ષી અને વનસ્પતિ સંસાર એ પણ એકબીજા સાથે શું છે કે એકચ્યુઅલી ઉપયોગી ને પૂરક છે. ફક્ત માણસ એવો છે કે આ ત્રણેય જગ્યાએથી લેવાનું એનું ચાલુ છે પણ આપવાનું નથી, અને એના લીધે અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે. એટલે હંમેશા કોઈ જગ્યાએ લેવાનું ને આપવાનું બંને વસ્તુ જો સંતુલનમાં રહે તો જ શું છે કે કાયમી વસ્તુ ચાલે. આપણે આપણા ઘરમાં પાડોશી હોય, પાડોશીને કાયમી કોઈ વસ્તુ સારી બનાવીએ, એમના ઘરે આપીએ, જ્યારે બનાવીએ ત્યારે આપીએ, પણ કોઈ દિવસ શું છે કે એમના તરફથી રિસ્પોન્સ જ ના આવે કે ના સારું છે ખોટું છે, અને એમના તરફથી પણ કોઈ પણ વસ્તુ આવે તો આપવા લેવાનો વ્યવહાર ચાલુ રહે. આ વાત બરાબર છે? નહીતર તમને કહું કે પછી લાંબા ટાઈમ પછી એક સાઈડની વાત હોય તો એ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય. એટલે એ વાત થઈ. એટલે આવું જે લેવાનું માણસે ચાલુ કર્યું એના લીધે શું છે કે એકચ્યુઅલી ગ્લોબલ વોર્મિંગ આવ્યું. આ ધરતી એ દિવસે દિવસે ખલાસ થવા લાગી. કારણ કે શું છે કે માણસ છે ને એ પોતે શરીર છે, હું શરીર જ છું એવું સમજીને ચાલે. એટલે ઇન્દ્રિયોથી સુખી કરવાની વાત એને આવી, અને ઇન્દ્રિયોથી સુખી કરવાની વાત આવી અને સામાનથી સન્માનની વાત આવી, એટલે એને સામાન ભેગો કરવાનું રાખ્યું. અને ઇન્દ્રિયોથી સુખી કરવા માટે અલગ અલગ ટાઈપના ભોગ અને અલગ અલગ વેરાયટી અને ભોગમાં વ્યક્તિ જવા લાગ્યો. કે આવી રીતે થયું. એટલે એના માટે શું છે કે આ ધરતીનું શોષણ એ થતું ગયું. આજે સન્માન માટે વાત છે કે શું છે કે એકચ્યુઅલી મને ગાડીથી સન્માન છે, મને બંગલાથી સન્માન છે, મને આ છે, આ બંગલા કરતો મોટા બંગલાથી સન્માન છે, એના કરતો મોટા બંગલાથી સન્માન છે. આવી વાત આવે ત્યારે 1 મકાન, 2 મકાન, 3 મકાન આવું કરતા જાય તો અલ્ટિમેટલી જોવા જઈએ તો મકાન બનાવવા માટે જે વસ્તુ છે એ તો ધરતીમાંથી જ આવવાની છે. તો હકીકતમાં આવું કરતા 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 ધરતીનું શોષણ થતું ગયું ને ગ્લોબલ વોર્મિંગ થયું. બીજી વાત એવી છે કે અહીંયા માણસે આ માનવકૃત વ્યવસ્થાઓ બધી બનાવી, પરિવાર, સમાજ, આ બધું જ છે. એ બધામાં પણ છે ને હકીકતમાં એને
કોઈ પણ જગ્યાએ આપવામાં માણસે દરેક જગ્યાએ શું છે કે એકચ્યુઅલી આપવામાં લેવામાં શોષણ જ કર્યું છે બધી જગ્યાએ. પરિવારનું શોષણ અને પરિવાર માનવનું, સમાજ અને માનવ, આ બધી જગ્યાએ બધા લાલ એરો છે. અને આ બધા જ લાલ એરો છે એનો મતલબ અહીંયા માણસ છે ને એકદમ આ બધી જે વ્યવસ્થા અત્યારે છે એ ફક્ત ને ફક્ત શરીરને ધ્યાનમાં રાખીને છે. મનવાળો વિચાર છે, જે તનખવા અને મનખવાની વાત કરીએ, જે મનને ભાવ અને વિચારની સ્થિતિ વાળો પાર્ટ છે, એ પાર્ટને અહીંયા કોઈ ધ્યાનમાં ન રાખ્યો. અને માણસની જે વ્યાખ્યા છે, બરાબર છે, કે મનાકારને સાકાર કરવાનો, સ્વસ્થતાનો આશાવાદી, એ વાત છે. મનસ્વસ્થતા એ હકીકતમાં શું છે એ પાર્ટને અહીંયા ન થયો. એટલે ફક્ત શરીરને ધ્યાનમાં રાખીને બધી વ્યવસ્થા થઈ અને એ વ્યવસ્થાઓએ છેલ્લે ફેમિલી વોર્મિંગ ઊભું કર્યું. બરાબર છે. પછી આપણે સંબંધની વાત થઈ હતી કે પૂર્ણતાના અર્થમાં સંબંધ, એ પણ આપણે કાલે વાત કરી હતી. હવે એમાં 3 પૂર્ણતા છે: ગઠન પૂર્ણતા, ક્રિયા પૂર્ણતા અને આચરણ પૂર્ણતા. ગઠન પૂર્ણતા એ એવી વસ્તુ છે કે ગઠન પૂર્ણતા એ જે પરમાણુ, જડ પરમાણુ, એ ગઠન પૂર્વક એક ગઠનશીલ પરમાણુ ગઠન પૂર્ણ થયો. એટલે એમાં જે કંઈ આગળ આપણે ભૈયાએ આખી બધી વસ્તુ કરી હતી કે ભાઈ સેન્ટરમાં આત્મા છે, એક અંશ છે, અને પહેલા પરિવેશમાં 2 અંશ છે, બીજા પરિવેશમાં 8 અંશ છે, ત્રીજા પરિવેશમાં 18 અંશ છે અને ચોથા પરિવેશમાં 32 અંશ છે. એવી રીતનો આ એક પરમાણુ એવો બન્યો કે એ હવે એની અંદરથી અંશોને આપવાનું કે અંશોને લેવાનું એવી કોઈ વાત નથી. એનું ગઠન પૂર્ણ થઈ ગયું. અને આ ગઠન પૂર્ણ થયું એટલે એ જે ગઠન પૂર્ણ થયું એટલે એને એ હંમેશા પરમેનન્ટ થઈ ગયો. એ હવે શું છે કે એ અમર થઈ ગયો. એનાથી શું છે કે એકચ્યુઅલી એને પછી કોઈ દિવસ કોઈની સાથે લેવાડ દેવાડ કરવાની નથી. એટલે એની સ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. એવી રીતનું, અને એને આપણે જીવન કહ્યું. અને એવું જીવન એ માણસના શરીરને અને પશુના શરીરને ચલાવે છે. એવી વાત ટૂંકમાં ચલી. એટલે ગઠન પૂર્ણ થયું ત્યાં સુધીમાં માણસની કોઈ ભૂમિકા નથી. એ પ્રકૃતિ સહજ થી એ ગઠન પૂર્ણતા થઈ. એના પછીની ક્રિયા પૂર્ણતાની વાત આવી. તો ક્રિયા પૂર્ણતાની વાત આવી એટલે આપણે આગળ જે 10 ક્રિયાઓ લખી હતી એ 10 ક્રિયાઓમાંથી 4.5 ક્રિયાઓમાં માણસ ફરે છે. અને 4.5 ક્રિયા એટલા માટે કે ન્યાય ધર્મ સત્યવાળી વાત છે. પ્રિયહિત લાભ અને ન્યાય ધર્મ સત્ય, આ 6 વસ્તુથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુની સરખામણી કરીએ, પણ ન્યાય ધર્મ સત્યવાળી વસ્તુ છે ને એ આપણી સરખામણીમાં બિલકુલ આવતી જ નથી. પ્રિયહિત લાભવાળી વાત જ છે ને આવે છે. મને શું સારું લાગે છે, મારા શરીરને શું સારું લાગે છે, અને મારા ખિસ્સાને શું સારું લાગે છે, મારા પોકેટને શું સારું લાગે છે. આ 3 જ વસ્તુઓ ઉપર વાત થઈ. એટલે હકીકતમાં જોવા જઈએ તો ક્રિયા પૂર્ણતા એટલે એ 4.5 ક્રિયાની વાત છે. હવે માણસ તો ખરેખર જોવા જઈએ તો માણસ બનવા માટેનો પ્રયત્ન આ 4.5 ક્રિયામાંથી 10 ક્રિયા સુધી પહોંચવાનું કામ છે. એ માણસને શું છે, માણસ બનવા માટેનો પ્રયત્ન છે. ત્યાં સુધી તો આપણે પશુ માનવ અને રાક્ષસ માનવ જ છીએ, તમે હું બધા જ. આપણે પૂરી માણસની વ્યાખ્યામાં હજુ આવતા નથી. એટલે આ વાત છે. એટલે હવે આપણો જે શ્રમ છે, આપણો જે પ્રયત્ન છે, આપણી આ બધી શિબિરો છે, આપણે જે કંઈ કરવા જઈએ છીએ એ આગળ હવે ક્રિયાપૂર્ણતા તરફ જઈએ છીએ. અને ક્રિયાપૂર્ણ થઈ જઈશું તો આચરણ પૂર્ણતા પાછી એનાથી આગળની વાત છે કે એ જ વસ્તુ, મને જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ એનો હું જીવવા માટે શું ઉપયોગ કરું છું, એ મારી આચરણ પૂર્ણતાની વાત આવશે. તો એ જીવવા માટેના ઉપયોગની વાત છે. બરાબર. હા, હવે આચરણ પૂર્ણતામાં શું છે કે એકચ્યુઅલી જે જાગૃત જીવન કે અનુભવ 10 ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગયો, એ અનુભવ સંપન્ન થઈ ગયો, એ પરિવારના લેવલે, સમાજ લેવલે, પ્રકૃતિ લેવલે, આવી રીતે જેટલું એનું આચરણ કરશે તો પરિવાર લેવલે જો એનું આચરણ હોય તો એ માનવ થશે, માનવ કહેવાય. સમાજ લેવલે એનું ફેલાવ હોય જ્ઞાનની રૂપે, માનવ, દેવ માનવ અને દિવ્ય માનવ એ 3 જ્ઞાન રૂપે એક જ સરખા છે. પણ જ્યારે પરિવારમાં એનું આચરણ છે ત્યાં સુધી એ માનવના કેટેગરીમાં છે. સમાજ લેવલે એનો ફેલાવ થાય છે. એને જે જ્ઞાન મળ્યું છે એનો ફેલાવ એ સમાજ લેવલે કરે તો એ દેવ માનવ છે. અને એ 4 અવસ્થાઓ સંતુલનમાં થાય એ રીતે એનો ફેલાવ હોય તો એ દિવ્ય માનવ છે.
અને એવી આ રીતે આ વાત કરી અને ખરેખર અખંડ સમાજ સાર્વભૌમ વ્યવસ્થા અને આવી વસ્તુ બને તો શું છે કે હકીકતમાં વસુદેવ કુટુંબકમ વાળી વાત છે ને એ આ ધરતી ઉપર સાકાર થાય. આ એક આખી વાત એટલે પૂર્ણ તરફની વાત છે. એ આખું આપણે જે જીવીએ છીએ તો કોઈ દિવસ આપણે એકલા જીવી શકવાના નથી. એક ગામ પણ જીવી શકવાનું નથી, એક દેશ પણ જીવી શકવાનો નથી. આ ધરતી એ યુદ્ધ વિહીન થાય અને આખો ધરતી એક પરિવાર તરીકે જીવે એવી રીતની આખી પૂર્ણતાની વાતની કલ્પના કરી છે. એટલે આ આખી વાત એ કલ્પના કરી છે ને એ હકીકતમાં આ રસ્તાથી સાકાર થઈ શકે એવી વાત કહેવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કર્યો છે. નમસ્તે. આમાં કઈ બીજો કઈ પ્રશ્ન તમને? जी पूरे शिविर में से तो सब क्वेश्चन की क्लियरिटी हो गई, फिर भी ऐसा है कि आजकल बर्थडे और एनिवर्सरी सब जगह पे हम केक देते हैं और केक के पास में मोमबत्ती लगा के उसको बुझाते हैं और ये सब कर इनमें भी वेस्टर्न कल्चर क्या इसकी क्लियरिटी कैसे? देखो, अभी जब तक कोई सर कटाने की जगह में नहीं पहुंच रहे हैं तब तक ज़्यादा झंझट नहीं है. तो केक लगा लो, मोमबत्ती लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी उसमें सार्थकता दे पाए. आज केक और मोमबत्ती हटाओगे तो तुरंत एक नया तरह का वो आता है कि नहीं, बर्थडे तो हुआ ही नहीं. केक नहीं आया, मोमबत्ती नहीं लगी और कटा नहीं तो मतलब बर्थडे नहीं हुआ. ये स्वीकृति परिवारों में आ गई. तो अभी इस स्वीकृति को हैंडल कर पाना तुरंत की बजाय बर्थडे का प्रयोजन क्या है. तो बर्थडे का प्रयोजन ये है कि जिसका बर्थडे है वो जितने साल भी उसके पूरे हुए हैं शरीर यात्रा के, उसकी उपलब्धि क्या रही और उसमें जो उपलब्धि रही उसमें सबका क्या योगदान रहा और आगे के लिए वो क्या संकल्प ले रहा है, क्या सोच रहा है, ऐसा वो शेयर करे. और परिवार के सारे लोग उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको शेयर करें. तो मेरे को लगता है कि ये पूरे परिवार के लिए और जो भी मित्र परिवार आते हैं, तो कोई भी घटना हमारे लिए एक उत्सव है. उत्सव का मतलब है एक दूसरे के प्रति जो स्वीकार्यता है, जो स्वीकृतियां हैं, उनको व्यक्त करना है और उनकी खुशी मनाना है. मानव की सारी खुशी इस बात की है कि आप जो सोच रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, या आप जो सोच रहे हो वो मुझको पता चले. हम में आपस में पारदर्शिता की अपेक्षा है, लक्ष्य के अर्थ में सहयोग की अपेक्षा है. तो इसको हम जन्मदिन में उस घटना में पिरो दें तो ये मोमबत्ती और अगरबत्ती और ये सब कुछ सार्थक हो जाएगा. तो केक काट लें, मोमबत्ती कर लें, जो करना है सब कर लें. उसके बाद एक शेयरिंग मोड शुरू करें. तो जिसका बर्थडे होगा वो ये शेयर करेगा कि इतने साल के रूप में या पिछले 1 साल में उपलब्धि के रूप में मैं क्या मानता हूँ, इस उपलब्धि में बाकी सबका योगदान कैसा रहा, उनके प्रति कृतज्ञता, और आगे के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ. घर के बाकी लोग शेयर करेंगे कि उस व्यक्ति की जिसका जन्मदिन है उसके बारे में कुछ अच्छी बात शेयर करेंगे जो वो पहचानते हैं, नोटिस करते हैं. अभी परिवारों में निकट दोष होता है. हम एक दूसरे की अच्छाइयों को शेयर करने का कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है, बल्कि ये माना गया है परंपरा में कि अच्छाइयों को उसके मुंह के सामने नहीं कहना है. किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को उसके सामने नहीं बोलना है. उसकी पीठ पीछे बोलो लेकिन उसके सामने मत बोलो, इससे वो बिगड़ जाएगा. ऐसे भी एक कंडीशनिंग है. उस कंडीशनिंग के चलते भी हम अच्छाइयों को व्यक्त नहीं करते. तो ऐसा यदि करेंगे तो एक है ना जो है उसको सार्थकता कैसे प्रदान किया जाए, ऐसा काम सोच सकते हैं. जी बढ़िया. तो जितनी चर्चा हमने की है फाइनली उसको यदि समराइज करें तो पूरे 7 दिन में केवल हमने 2 बातें की. एक हमने कहा कि सारी सृष्टि मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, दूसरा जीवन शरीर को चलाता है. बस इतनी ही बात की. 7 दिन में केवल 2 सेंटेंस बोले हैं कि ये सृष्टि मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, स्वयं स्फूर्त विधि से 4 अवस्थाएं प्रकट है, और मानव जो है जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है. केवल ये 2 बातें 7 दिन में बोली.
और पूरी सृष्टि में उपयोगिता पूरकता के अर्थ में संबंध की पहचान है। ऐसा भी एक लाइन और जोड़ सकते हैं। इसको फाइनली जीने के स्वरूप में लाएं तो थोड़ी सी बात करके आज की बात को पूरी करेंगे। तो अब ये समझ में आया परिवार क्या है। जहां पार लग जाए उसका नाम परिवार है। पार लग जाए मतलब है ना। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, परिवार वो जगह है, बेसिकली जीवन शरीर को चलाता है, अपनी पूर्णता को पाने के लिए चलाता है। जीवन शरीर को चलाता है अपनी पूर्णता को पाने के लिए और अपनी पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए जीवन शरीर को चलाता है। तो परिवार वो जगह है जहां वो अपनी पूर्णता को पाता है और परिवार वो जगह है जहां आने वाली पीढ़ी के माध्यम से अपनी पूर्णता को प्रमाणित करता है। अब देखिए परिवार कितनी महत्वपूर्ण जगह हो गई मेरे लिए। अभी तक जो परिवार केवल खाने पीने की जगह थी, धीरे धीरे वो होटल में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये ध्यान में आया कि वो मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए पूजनीय स्थल है, जहां से मुझको शरीर मिला है, पोषण मिला है, ज्ञान भी मिले और आने वाली पीढ़ी को मैं भी शरीर, पोषण और ज्ञान जो मुझको मिला है वो मैं आने वाली पीढ़ी को दे सकूं। मैं मुझको मिला ही है। तो परंपरा ने उसको ऊऋण होने के रूप में कहा, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गांव ऋण और तमाम गुरु ऋण। यहां उसी चीज को ये कह रहे हैं कि प्रमाणित होने के क्रम में वो मेरी आवश्यकता है। तो मेरे को लगता है कि ये बात हमारे ध्यान में आ जाए तो परिवार की जगह हमारी नजरों में, हमारी जिंदगी में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत अलग तरह से हो जाएगी कि परिवार मेरी पूर्णता को पाने की जगह है। अभी परिवार कैसा है? शरीर को पाने की जगह है और शरीर के पोषण की जगह है। इससे काम नहीं चला। तो परिवार पूर्णता को पाने की जगह है, पूर्णता को प्रमाणित करने की जगह है। तो परिवार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हो गई। और यदि परिवार दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हो जाएगा तो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन सफल हो जाएंगे। आप लोग खुश नहीं होते? कैसा लग रहा है? खुश होने लायक बात है कि नहीं? अभी परिवार हमको झंझट लगता है। कितनी दूर अपन चले गए हैं देखिए। ना समझने के कारण अभी परिवार ही हमको झंझट लगता है। हम लिविंग में चले गए, हम परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, परिवार बसाना भी नहीं चाहते हैं, अपनों से दुख पाया है, तमाम इस जगह में हम पहुंचे। ये जगह की बजाय अस्तित्व में उसका स्वरूप कैसा है और उससे हम कितना दूर निकल आए हैं ना समझने के कारण। तो ये हमारे ध्यान में आता है तो बिल्कुल हम नए सिरे से सोचना शुरू करेंगे। देखो शिविर के शुरू से ये चर्चा हुई थी कि बेसिकली मेरी सारी दुनिया मेरे भाव और विचार की उथल पुथल है। उथल पुथल का मतलब क्या है? जो चीज जिस अर्थ में है अस्तित्व में, मैंने उसको उस अर्थ में पहचानने की बजाय मेरे भ्रमवश कुछ और मान लिया है। तो परिवार किस अर्थ में है ऐसा हमने पहचाना, हम कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं उसको हमने पहचाना। तो हम कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं उसको हमने पहचाना, कहाँ पर जाना है उसको हम पहचानेंगे तो अपनी एक यात्रा को शुरू कर पाएंगे। तो अब हमारे परिवार का तन मन धन अपने परिवार को स्वर्ग बनाने में लगेगा और ये करने लायक काम है। और ये काम हो गया तो पूरे संसार का वन अर्थ वन फैमिली का काम हो गया और ये धरती अपनी यात्रा को पूरा कर पाई। कितना सुंदर। देखो मानव के साथ ऐसा है, जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। किसी को ये स्वीकार हो गया कि मेरे को सुसाइडल बॉम्ब बनना है
तो वो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े अपने हाथ से कर देता है। जब आदमी ने किसी मान्यता के आधार पर अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लोगों ने लोगों को मरने के लिए तैयार कर दिया, तो हम तो जीने की बात करें। इसके लिए आदमी तैयार होगा कि नहीं होगा? होगा ही। बढ़िया। तो हमने देखा तो परिवार का स्वरूप क्या होगा। परिवार का स्वरूप क्या होगा? तो परिवार क्या है? परिवार मूल्यों का शिक्षण केंद्र है। परिवार मूल्यों का शिक्षण केंद्र है। परिवार खाना पीना खाने का केंद्र नहीं। परिवार आचरण का शिक्षण केंद्र है। मूल्यों का मतलब आचरण का शिक्षण केंद्र, जहां आचरणशाला है ना। क्या हुआ? जैसे दो माँ बाप, उनके दो बच्चे, इनकी शादी हो गई, इनके दो दो बच्चे हो गए, तो ये बच्चे, ये प्रौढ़, ये बुजुर्ग। तो देखिए, अब ये ध्यान में आता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार में जन्म ले और अपने परिवार में शरीर छोड़े तो नेचुरल है 3 पीढ़ियां मिनिमम हो जाएंगी, चौथी भी आ जाए तो बुरी बात नहीं। तो इससे ये समझ में आया कि बेसिकली कोई एक परिवार 3 से 4 पीढ़ी का ही होगा। और अब ये आपस में छोटे बच्चे हैं, ये भाई 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 बहन आपस में कैसा जिएंगे, ये किसको देख के सीखेंगे? किसको देख के सीखेंगे? तो इनके माँ बाप भाई बहन के रूप में, भाई भाई के रूप में ये कैसे जीते हैं, तो इनके माँ बाप आपस में भाई बहन के रूप में कैसे जीते हैं, ये इनकी डायरेक्ट आचरण की क्लास होगी। ये अपने माँ बाप के साथ कैसे जीते हैं, तो कैसे सीखेंगे? हम अपने माँ बाप के साथ कैसे जीते हैं उसको देख के समझेंगे, उसको देख के सीखेंगे। ये बड़े होके इनकी शादी हो जाएगी तो ये पति पत्नी के रूप में कैसा जिएंगे, तो हम माँ बाप पति पत्नी के रूप में कैसे जीते हैं हमको देख के सीखेंगे। तो इससे क्या समझ में आया? फिर ये शिविर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही अर्थों में जो काम हम अभी कर रहे हैं ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ये काम एक बच्चा अपने घर में देख के पालेगा, है ना। यदि सही अर्थों में परिवार जागृत होगा, परिवार में वो स्थितियां होंगी, नहीं होगा तो मोहल्ले पड़ोस में देख लेगा। तो इससे ये पता चला कि कोई भी परिवार, और देखो एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये लगातार क्वेश्चनिंग मोड में है। ये लोग अभी लगातार अपने करियर के मोड में है। इनके ऊपर करियर बोलें या व्यवसाय का दबाव बोलें या सब कुछ अभी नया है। ये लोग हैं जो अब व्यवसाय के दबाव से और बहुत सारे दबावों से बाहर निकले हैं और इनको एक्सपीरियंस है। तो सही अर्थों में सर्वे भी ये कहता है कि बच्चे जितना दादा दादी नाना नानी से सीखते हैं उतना माँ बाप से नहीं सीखते हैं, क्योंकि माँ बाप लगातार डूज एंड डोंट्स के मोड में रहते हैं, क्योंकि उनको लगातार चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। दादा दादी ज़्यादा अनकंडीशनली बच्चों को स्वीकार कर पाते हैं। तो सही अर्थों में कहें कि ये अकेले पड़ गए हैं, ये अकेले हैं, और ये भी अकेले हैं क्योंकि इनको कोई 24 घंटे एक व्यक्ति की जरूरत है जो इनके लिए इनके प्रश्नों का उत्तर उस सम्मान के साथ, उस प्यार के साथ, उस आराम के साथ, जल्दबाजी में ना हो,
तो सही अर्थ में परिवार के बुजुर्गों की बड़ी, यदि वो जागृत है, नहीं तो ये भी अपने आप में प्रॉब्लम ही है, यदि ये जागृत हैं, यदि ये समझदार हैं, तो अंतिम सांस तक वो संसार में उपयोगी होके जाएं, क्योंकि दुनिया में आदमी बनना, आदमी बनाने से बड़ा कोई काम है नहीं। तो एक बुजुर्ग अंतिम सांस तक बात करने में तो योग्य है ही है, घर में है ही है, उसको सेवा की आवश्यकता है ही है, और परिवार में उस बुजुर्ग की सेवा करते हुए जब वो अपने माँ बाप को देखता है तो इसमें बच्चे में सेवा का संस्कार बन जाता है, बुजुर्ग से बच्चे में ज्ञान का संस्कार बन जाता है, अपने माता पिता को देख के श्रम का संस्कार बन जाता है। तो 3 ही चीजें हैं आदमी की जिंदगी में। पहली बात, वो जिंदगी के किसी काल तक सेवा पाता है, उसके बाद वो श्रम करता है, इस बीच में वो ज्ञान के साथ ज्ञान को पाता है, यहाँ वो ज्ञान को प्रमाणित करता है, यहाँ उसकी फिर सेवा की आवश्यकता बन जाती है, और वो ज्ञान पूर्वक जीता है। तो मानव की जिंदगी श्रम, सेवा और ज्ञान के साथ संतुलित विधि से चलती है। किसी उम्र में वो सेवा प्रधान है, जब बच्चा है तो उसका जीवन शैली सेवा प्रधान है, वो सेवा चाहता है। जब प्रौढ़ अवस्था में आ गया, 20-30 के ऊपर चला गया, तो उत्पादन प्रधान विधि से, व्यवसाय प्रधान विधि से जीता है, और बचपन से लेके प्रौढ़ होने तक वो ज्ञान को पाने के अर्थ में जीता है। प्रौढ़ होने के बाद ज्ञान को ज्ञान पूर्वक जीता है, और बुजुर्ग होने के बाद अब वो व्यवसाय में और वो सेवा दूसरे की नहीं करेगा, उसको सेवा की जरूरत है और वो दूसरों के ज्ञान के लिए स्रोत होगा। तो हर आयु में हर व्यक्ति कैसे अपनी उपयोगिता के साथ जी सकता है, और हर व्यक्ति को जो कुछ भी आवश्यक है वो उसके परिवार में मिल सके, परिवार के सर्किल में मिल सके। इस तरह से एक बच्चे की जो आवश्यकता थी वो पूरी हुई, एक प्रौढ़ की जो आवश्यकता थी, अब इनका समय है एक तरह से परिवार व्यवस्था को खड़ा करने का। तो ये बच्चे की बात करें, बुजुर्ग की बात करें और प्रौढ़ की बात करें, तीनों अपने आप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो किसी भी परिवार का स्वरूप क्या है? लगभग 3 पीढ़ियां, लगभग 10 लोग। 10 लोग का ये नहीं है कि 11 हो गए तो बाहर निकाल देंगे और 9 रह गए तो गोद ले आएंगे। 10 का मतलब 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ऐसा एक परिवार का स्वरूप बनता है। ये भारतीय परिवार का स्वरूप है कि वैश्विक परिवार का स्वरूप? पूरे विश्व में ऐसा ही होगा। अब बोलिए कैसा लग रहा है? लॉजिकल है? लॉजिकल भी है, पर्पस पूर्ण भी है, पर्पस के साथ भी है। तो क्या लगता है, परिवार संस्था के प्रति विश्वास जग रहा है? शादी करना ठीक काम है? बोलो भाई, 25-30 साल के नीचे वालों, अनमैरिड लोग हाथ उठाओ, अनमैरिड लोग हाथ उठाओ। जो लोग मैरिज के लायक नहीं हुए हैं वो क्यों उठा रहे हैं? मैरिज के लायक गवर्नमेंट का है, मैरिज मतलब 22, लड़का मतलब 22 साल के ऊपर। 22 है, 21 है, तो 21 साल के ऊपर जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो हाथ उठाएं। 21 साल के ऊपर जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो हाथ उठाएं। नहीं हुई है, नहीं की है, ठीक है। तो इन लोग को क्या करना है बताओ भाई? पीछे बेटियां बैठी हैं, ये लोग बताएं क्या लगता है शादी को लेके क्या विचार बना? शादी को लेके पहले क्या सोचते थे, अभी क्या विचार बन रहे हैं? अनमैरिड लोग बोले। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अनमैरिड लोग बताएं, 7 दिन की चर्चा के बाद, 7 दिन के पहले आप शादी के लिए क्या सोचते थे, अभी आप शादी के लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ भाव विचार में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ?
ये देखो, पेमेंट देते समय सिंसियरिटी नहीं। कोई बोलेगा? नहीं? 21 साल के ऊपर जिसकी मैरिज नहीं हुई, आपकी तो बच्चों की मैरिज हो गई होगी, तो आप इसमें योग्य नहीं। सुपात्र की तलाश। हाँ जी, है कोई? कोई नहीं बोले, शर्मा रहे। सर ये भाई कुछ कहना चाहते हाँ, कहाँ है? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, संकोच ना करो। हैं। अभी तक विवाह का मतलब पता ही नहीं था मेरे को कि विवाह। अब जब कल ही आपने बताया ना कि विवाह इतनी बड़ी। कहाँ से आए हो? परिचय क्या है? मेरा नाम दीपक है, मैं मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से, अच्छा। हाँ, कितनी और आयु है? अभी तो 21 है। 21। अरे उसको जानो। आपने जो कल ही बताया ना कि विवाह इतनी बड़ी घटना है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी घटना विवाह हो सकती है। अभी तो विवाह का मतलब लाइक ऐसा था कि एक खाना बनाने वाली आ जाएगी एंड पहले ऐसे ही मानते थे, खाना बनाने वाली आ जाएगी, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, ऐसे ही मानते। वही था। और वंश परंपरा, हाँ, लाल किला बनाया उसको कौन देखेगा? ऐसा ही था। इतना ही था। अब क्या हुआ? अब विवाह का मतलब ये समझ में आया कि वंश परंपरा तो जानवर भी बढ़ाते हैं, तो अपन तो जानवर तो है नहीं, अपने तो ज्ञान अवस्था की का ही है। तो ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना भी एक विवाह का पर्पस है। एक नहीं है, वही। हाँ वही। बाकी सब उसके साथ में है, रोटी वोटी मिल जाएगी। हाँ वो तो हो जाएगा, उसमें निहित ही है। देखो, गुरु में लघु समाया रहता है, तो रोटी की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, लाल किला कौन देखेगा, ये सारी आवश्यकताएं उसमें अपने आप निहित। जी बढ़िया। बहनों में से कोई एक जन बोले। हेलो, हाँ जी। नमस्कार। यहाँ सर आगे। हाँ, गुड। अभी तो मेरी आयु 20 साल की हूँ मैं। तो लड़कियों में तो 18 साल ही रहते। हाँ, तो पहले ऐसा था कि विवाह तो मुझे पहले भी करना था और अभी भी करना ही है, पर अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हुआ। पहले विवाह मतलब घूमेंगे फिरेंगे साथ में रहेंगे, ऐसा ही सब कुछ। ये कौन? अरे ये और झंझट। अब क्या है, अभी तो वंश परंपरा तो ठीक है, पर अभी मैं ये सब पढ़ के समझण पूर्वक मानव बनूंगी, फिर मैं दूसरे परिवार में जाऊंगी और उसको भी इसमें जोड़ के समाज में अपना योगदान दूंगी। बस बोलो मुंबई वालों, मुंबई में सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो, मुंबई का फ्रेंचाइज आपको देते हैं। बताइए, देखो आज लगभग बेटियां या बच्चे शादी की उम्र में आने के बाद इतना भारी कंफ्यूजन है, और वो गलत नहीं है, बच्चे गलत नहीं है। बच्चे लॉजिकली जब आप सोच रहे हैं तो उनको डेड एंड पे गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है, उसके आगे रास्ता दिख नहीं रहा है, तो बच्चे शादी से मना कर रहे हैं। हेलो सर, बोलो बोलो। मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है। थोड़ा माइक नीचे करो, पेट पे रखो, ऐसे पेट पे रखो, पेट पे। हाँ, मैं सतलासना से आया हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। तो मेरा शादी को लेकर यह मानना है कि सिर्फ शादी करके, बच्चे पैदा करके वंश को आगे बढ़ाना, या घर में एक स्त्री ला दी जो खाना बनाए, बर्तन धोए, ये नहीं होता है। मेरा मानना यह है कि शादी मतलब तुम्हारी, जो तुम जिसे शादी करके लाए हो वो तुम्हारा जीवन साथी,
एक दूसरे के सुख दुख को समझना, तुम्हारे जीवन साथी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे हमेशा साथ रहे, तुम्हारे सुख में दुख में। इस पर मैंने बात सुनी थी, किसी ने कही थी कि एक गांव में एक बार एक गुरु आए जो अपनी पत्नी के साथ थे। तो उनसे किसी ने मेरी तरह पूछा कि क्या गुरुजी शादी करनी चाहिए? तो उन्होंने बताया कि ठीक है, चलो तुम रात को आना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो भी बंदा मेरी तरह था, तो वो उनके पास गया। तो गुरुजी ने एक मशाल उठाई और अंधेरे में कुछ ढूंढने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया कि अरे सुनती हो, इधर सुई गुम गई है, तो आओ और तुम मेरी ढूंढने में मदद करो। तो वो बंदा देखता रहा उनको। फिर उसके बाद वो भी, उनकी गुरुजी की पत्नी थी, वो भी दोनों ढूंढते रहे। फिर कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा कि मुझे सुई मिल गई है, अब तुम जाओ और जाकर खाना बनाओ। फिर उस बंदे से गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? तो उसने कहा गुरुजी कुछ अभी तो आपने ये क्या किया, कुछ समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, दोनों में यदि समझने की क्षमता है एक दूसरे को, तो शादी करनी चाहिए। मतलब शादी का मतलब ये नहीं कि ये सब जो ये लोग कहते हैं कि खाना बना दे। मेरा मानना ये है कि तुम एक दूसरे को समझो और जिंदगी में सुख दुख के साथ आगे बढ़ो। देखो, जितनी बात आपने कही है ये संवेदनशीलता की ओर ज्यादा जाती है। अब ये ध्यान में आएगा कि जो कुछ अच्छे मॉडल की बात हम कर रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करना, सपोर्ट करना, यदि इसको पॉजिटिवली देखेंगे तो ये संवेदनशीलता तक जा रहा है, ये संज्ञानशीलता तक नहीं जा रहा है। तो इस तरह से अब हमारे ध्यान में ये आएगा कि हाँ, संज्ञानशीलता के अर्थ में, उस लक्ष्य के अर्थ में साथ साथ जीने का नाम, पूर्णता को प्रमाणित करने का नाम विवाह है। बढ़िया, तो ठीक हो गया, एक बात हमने पूरी किया। तो ये हमारे ध्यान में आ गया कि ये परिवार की बात कर रहे हैं, तो सही अर्थों में तो परिवार 3 पीढ़ियां 10 लोगों के साथ साथ होने हैं का नाम है। और ये कोई भारतीय मॉडल नहीं है, पूरे विश्व में कहीं भी होगा। 3 पीढ़ियों का आधार क्या हो गया? एक व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेगा, बहुत नेचुरल है कि वो उस परिवार में शरीर छोड़े, उस परिवार में छोड़ते समय तक 3 पीढ़ियां हो जाती। तो ये एक बात हो। तो यहां से अब ये ध्यान में आ गया कि क्या ठीक है। संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, या एकल परिवार, सुखी परिवार, ये ठीक है? इसमें क्या ठीक है? दूसरा, प्रेम विवाह, सफल विवाह, या अरेंज मैरिज, परंपरागत विवाह, सफल विवाह। बताइए, दोनों में से क्या ठीक? पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। पहला ठीक है कि दूसरा ठीक है? तो कितने लोग लगता है कि पहला ठीक है? हाथ उठाएं। पहला ठीक, पहला ठीक। प्रेम विवाह और लव मैरिज में से कौन सा ठीक है? परंपरागत अरेंज मैरिज में है अरेंज? हाँ जी, लव मैरिज ठीक है, कितने लोग सपोर्ट करते हैं? अरेंज मैरिज ठीक है, कितने लोग सपोर्ट करते हैं? सही क्या है? सही क्या है? समझदार परिवार, सुखी परिवार। सही क्या है? समझपूर्ण विवाह, सफल विवाह।
बढ़िया। बताइए। तो मेरी ओर से शिविर का कंटेंट पूरा होता है। एक प्राथमिक शिविर में जितना कंटेंट रख सकता था मैंने रखने की कोशिश की है और आपने बहुत अच्छे से ग्रहण किया है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो कितने लोगों ने कल लिखा शिविर के पहले हमारे विचार, शिविर की उपलब्धियां, आगे की योजना? कितने लोगों ने लिखा? हाथ उठाइए जी। कितने लोगों ने नहीं लिखा और अभी लिखना चाहते हैं? तो ऐसा करते हैं, 10 मिनट अब एक बार रुकते हैं, शांति से। देखो, हॉल से निकलने के बाद फिर आपकी यात्रा, दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो हॉल में बैठे बैठे जो समराइज करना है अपने लिए कर लीजिए। एक बार शांति से बैठ के अपने लिए आगे का प्लान कर लीजिए। तो अभी लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए। अभी 9:55 हुआ है, तो अपन 10 मिनट इस काम में लगाते हैं, है ना? सभी लोग लिख लीजिए। शिविर के पहले जब आए थे तो आपके क्या विचार थे? किन्हीं किन्हीं चीजों को लेके जिस पे आपका ध्यान जाता है, चाहे वो शादी है, चाहे वो परिवार की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो संबंध है, चाहे वो करियर है, जिस भी बारे में आपको अपने लिए ध्यान में आता है। तो शिविर के पहले हमारे विचार क्या थे? शिविर में 7 दिन में क्या उपलब्धि हुई है, आगे की हमारी योजना क्या है, और शिविर के लिए कोई आपके सुझाव हो वो भी आप लिख सकते हैं। तो 4 भाग में अपना मूल्यांकन लिख लीजिए। 10-15 मिनट इस काम में लगाते हैं। शांति से, आपस में बातचीत करने की बहुत आवश्यकता इसमें नहीं है, अपने आप से बातचीत करने की जरूरत है। कागज आपके पास है ही है, अपनी कॉपी से एक पेज निकाल के आप उसमें लिख लीजिए। हाँ जी, हो गया? चले आगे। तो दशरथ भाई कमान संभाले, हमारा ड्यूटी पूरा हो गया। हेलो। हाँ, जिन जिन लोगों ने अपना जो लिखा है तो उसको एक एक लोग उसको ये बोलेंगे कि उसको कैसे कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से आगे आके ये करेंगे तो अच्छा है। इधर बीच में रह के करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग भी ठीक से होगा। और सबको नमस्ते। मेरा नाम चंद्रमणि ओझा है और मैं गोरखपुर से हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। जीवन विद्या के बारे में और यहाँ के शिविर के बारे में श्रवण भैया से मुझे सूचना मिली थी। वैसे तो उनसे संपर्क हमारा बहुत पुराना रहा है, लेकिन बीच में संपर्क कटा था। लेकिन लगभग 1-1.5 वर्षों से जब भी वो गोरखपुर में होते थे तो शायद ईश्वरीय प्रेरणा ही थी कि वो सूचना देते थे कि मैं इस स्टेट से इस स्टेट के बीच रहूँगा, और मैं भी उनसे मिलने का, चाहे अपने घर पर या कुछ परिवारों में कुछ लोगों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम बनाता था। बीच में 2 विद्यालयों में 1-1, 2-2 दिन, 2-2 घंटे का उनका शिविर भी हुआ शिक्षकों के बीच, प्रबंध तंत्र के बीच। लेकिन शायद इतने लंबे संपर्क के बावजूद मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं कभी गंभीरता से इस विषय पर नहीं सोच पाया। अभी मई महीने में वो आए थे और ऐसे चर्चा हुई, हमारे घर आए। मैंने कहा भैया मुझे भी शिविर करना है और कोई शिविर मई जून महीने में हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि सोम भैया का शिविर है लेकिन थोड़ा दूर है, विसनगर में है। मैंने फिर तय किया कि दूर भी है तो क्या हुआ, केवल जाने आने की बात है। नजदीक भी रहने पर शिविर में तो 7 दिन रहना ही है।
तो अचानक से हमने प्लान कर लिया और मैं अपने बेटे के साथ और भतीजे के साथ यहाँ आया हूँ। शिविर में आने से पूर्व भी मैं थोड़ा सामाजिक रहा हूँ और अलग अलग संगठनों के साथ काम करके संवेदनशीलता में जीने का प्रयत्न करता रहा हूँ, लेकिन शायद जीना क्यों है और कैसे जीना है इस विषय पर मैं कभी सोच भी नहीं पाया। यहाँ आने के बाद बहुत सारी बातें समझ में आई हैं, बहुत सारा भ्रम टूटा है और जीवन को किस प्रकार जीना है और जीने का अर्थ क्या है ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। आगे हमारे यहाँ जो परिवार व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, शायद इस बात को लेकर जीने का आदी हो गई है कि तुलना करके दूसरों से जीवन को जीना है। और शिक्षा व्यवस्था, एक शिक्षक के रूप में भी मैं इस बात को कह पा रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में मानव बनने बनाने की कोई प्रक्रिया शामिल नहीं है, एकदम से अछूती है। और एक गला काट प्रतियोगिता हो रही है जहां बच्चों को भी हम एक दूसरे को पीछे करने की सीख ही दे पा रहे हैं। नंबर गेम है और विद्यालय भी अपनी पीठ ठोकते हैं कि मेरे विद्यालय में ये प्रथम स्थान पाया, द्वितीय स्थान पाया। और किसी भी बोर्ड का रिजल्ट निकलने के बाद अखबारों के पेज विज्ञापन से भरे होते हैं कि मेरे विद्यालय से इतना परसेंट पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, लेकिन समाज को दशा दिशा दे पाने का, प्रकृति के नियमों को समझ पाने का और वास्तव में जीना क्या है कोई विद्यालय सिखा नहीं पा रहा है। शिविर के पश्चात मेरे अंदर समझ विकसित हुई है और इस प्रकृति के साथ अपने संबंधों को मैं समझ पाया हूँ। परिवार व्यवस्था को लेकर के एक नए सिरे से सोचने पर विवश हुआ हूँ। शिविर की उपलब्धियां अमूल्य हैं, शायद उस पर चर्चा की जाए तो पूरा दिन लग सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि गुरु चिंतन में बैठे हैं और अचानक कह उठते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। शिष्य पूछता है कि तो मैं कौन हूँ? तो वो कहते हैं तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। और फिर पूछता है कि ये पूरा जगत, ये सृष्टि क्या है? तो वो कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्ममय है, ब्रह्म में व्याप्त है। और यहाँ आकर के सोम भैया ने उसको बड़े बारीक ढंग से बताया कि वास्तव में ब्रह्म होने का, ईश्वर होने का मतलब क्या है, इसको समझ सका हूँ। आगे की जो मेरी योजना है कि अभी अपने पत्नी और एक छोटा बच्चा मेरा है, 4ठी कक्षा में पढ़ता है, उसके साथ और एक मित्र हैं जो विद्यालय प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर शहर में ही एक पब्लिक स्कूल चलाते हैं। उनसे संवाद हुआ तो उनके परिवार के साथ छोटी रायपुर में श्री राम भैया का शिविर 23 जून से 29 जून तक का है, तो वहाँ करना है। उसका रिजर्वेशन हो गया है और अगला शिविर वो करना है। अगली योजना में कम से कम एक विद्यालय में श्रवण भैया के साथ 2-3 बार उस विद्यालय में शिक्षकों के साथ बैठना हुआ, तो जीवन विद्या को लेकर के गोष्ठियां हो सके वहाँ के प्रबंधन और शिक्षकों के बीच। ऐसा प्रयास होना है कि वहाँ पे कम से कम गोष्ठी हो और उनके बीच ये बात आए और कैसे पाठ्यक्रम में कम से कम एक पीरियड इसको शामिल किया जा सके। साथ ही साथ गोरखपुर में कैसे शिविर हो, इसको लेकर के श्रवण भैया के साथ एक योजना बनानी है। 7-8 साल पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में एक 3 दिन का शिविर हुआ था जीवन विद्या को लेकर के। संयोग से मेरा दुर्भाग्य ही रहा कि मैं उसमें केवल एक दिन शामिल हो पाया। अपने बहुत सारे मित्रों को मैंने कहा था, वो लोग गए थे, लेकिन मैं उसमें नहीं हो पाया था शामिल। तो कम से कम गोरखपुर में शिविर हो सके, इसकी व्यवस्था कैसे हो इसका मैं प्रयास करूंगा। और जीवन विद्या को लेकर के अपने मोहल्ले में कैसे हम चर्चा कर सकते हैं, मोहल्ले के लोगों के साथ भी बैठ के चर्चा हो सकती है, इसका मैं प्रयास करूंगा। दूसरा, चौथा बिंदु था इस शिविर के अनुभव को लेकर के
तो मेरा गुजरात में पहली बार आना हुआ और मेरा अनुभव अद्भुत है। रजिस्ट्रेशन के बाद नीलेश भाई हमारे बडी हैं, उनका फ़ोन गया, उन्होंने पूछा कि आप आ रहे हैं और मैंने स्वीकृति दी और तब से लेकर के वो लगातार संपर्क में बने रहे। मेरी ट्रेन में 4:30 बजे पहुंचने वाली थी, ट्रेन 7 घंटा लेट हो गई। परिवार के लोग संपर्क में थे, ऐसे बात हो रही थी कि कैसे आप पहुंचेंगे। मेरे मन में भी थी कि स्टेशन पे रुकेंगे या क्या होगा, कुछ पहले से तो मैं सोचा नहीं था। बहुत था कि ट्रेन 1 आध घंटे लेट हो सकती है, लेकिन जिस तरह से समर्थ परिवार ने आगे बढ़ करके और 11:30 बजे रात को भी अपनी गाड़ी भेजी तो मैं कृतार्थ हो गया। आने के बाद यहाँ प्रभुराम भाई के यहाँ रुकने की व्यवस्था है। पहले ही दिन संवाद में उन्होंने जब बताया कि हमारी कंपनी का उद्देश्य है कि 20,000 परिवारों को सुखी करना है, तो मैं शब्द सुन करके ही चकित था कि क्या कोई व्यवसायी परिवारों के सुखी होने की भी बात सोचता है। ऐसा मेरा पहला अनुभव हुआ। और इस परिसर में अगले दिन जब मैं नीलेश जी के साथ आया तो यहाँ की व्यवस्था को देख करके, यहाँ के लोगों को देख करके, और जलपान के समय दिनेश भाई जी आए और प्लेट लेकर बगल में बैठे, पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आराम से आ गए ना। तो मेरे मन में गुजरात को ही लेकर के पूरा एक बड़ी ही सुंदर छवि बनी है। और ऐसा मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में यूपी के मथुरा को छोड़ करके गुजरात में आके बस गए होंगे। यहाँ स्वामीनारायण जी को लेकर के अधिक मान्यता है, और वो भी हमारे गोरखपुर के बगल के ही जिले के में उनका जन्म हुआ था, और वहाँ से वो यहाँ करके अपने विचारों को फैलाए और यहाँ ही रहने का संकल्प ले लिया। तो निश्चित ही गुजरात के लोगों का व्यवहार संस्कार है जिसको मैं जीवन भर याद रख सकूंगा। धन्यवाद। सोम भैया, दशरथ भैया, दिनेश भैया, समर्थ परिवार और सभी उपस्थित मित्र को मेरा नमस्कार। मैं जैसे सोम भैया ने बताया, मैं उस हिसाब से 5 चीज बोलना चाहूंगा। छोटा सा नाम और परिचय जरा देते हैं। मेरा थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम यज्ञेश शुक्ला है। मैं राजकोट से आया हूँ, आत्मीय यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ और इलेक्ट्रिकल के अंदर मैंने पीएचडी की हुई है। तो मैं 5 चीज रखना चाह रहा हूँ। एक, मंदिर से चालू करूंगा। गंगा सभी ने देखी हुई है, उस पर थोड़ी बात करूंगा। पहले की सोच, अभी की सोच और बाद की सोच। ऊर्जा की बात करूंगा। जैसे 7 दिन में सोम भैया जिंदा और जीने की बात हुई है, उस पे एक लिटी बोलूंगा। शिविर के पहले मंदिर की सोच जो थी वो एक ही थी। सही में बोलूं तो मैं फैमिली के साथ आया हूं और मुझे बाहर जाने का शौक काफी है। कभी भी सोचता तो गाड़ी लेके निकल जाता था, खुद की गाड़ी लेके निकल जाता था। मतलब दूसरी की गाड़ी नहीं सोचता था, खुद की गाड़ी लेके निकल जाता था और एक ही जगह पे रुक जाता था, मंदिर में रुकता था और मंदिर में 1 दिन 2 दिन रुकते थे। मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, 25 साल के ऊपर मैंने शिक्षा में ही दिया हुआ है। बात करूं तो सोम भाई, मंदिर का जो मैंने सोचा था, मन के अंदर जाने वाला रास्ता, उसको हम मंदिर बोलते हैं। फिर घर एक मंदिर बोलते हैं हम लोग। काफी बार मैं काउंसलिंग भी करता हूं, वहीं पे मैं रुक जाता था, घर एक मंदिर कैसे बनाया जाए। सोम भैया ने काफी अच्छा उत्तर दिया था उसी टाइम पे कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखते हैं उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा किया जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमको मंत्र आने चाहिए। अभी हम बात करते हैं घर मंदिर। इंग्लिश के अंदर भी एक वर्ड आ गया है, हाउस और होम। जब होम का डेफिनेशन निकालोगे तो घर मंदिर ही रहता है, बट वो समझ में नहीं आ रहा था सोम भैया
कि घर को मंदिर कैसे बनाया जाए। उसके लिए तो मंत्र आने चाहिए। मंत्र में सीख नहीं पाया था और वहीं पे मैं रुक जाता था, घर पे भी बात करके छूट जाती थी, घर मंदिर बनाए कैसे। तो आज सोम भैया शिविर के बाद एक और चीज पता चली, घर मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले मानव मंदिर बना दे। और आज हमने अनुभव किया कि सभी के अंदर स्माइल आती है एक दूसरे को मिलने से। मानव मंदिर के लिए अपने को ज्ञान प्रतिष्ठा चाहिए और ज्ञान प्रतिष्ठा के लिए हमको मंत्र आने चाहिए, जो आज सोम भैया ने मंत्र सिखा दिए। वो मंत्र का नाम है समझ। जब अपने अंदर समझ आएगी तो मानव मंदिर बनेगा, मानव मंदिर बनेगा तो घर मंदिर बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई शंका की स्थान नहीं है। दूसरी बात करो तो गंगा, जैसे मैंने बोला कि गंगा सभी लोग गए हैं, तो जब गंगा के दर्शन करते हैं तभी मेरा एक क्वेश्चन रहता था सोम भैया कि गंगा में नहाने से क्या पाप धुल जाते हैं? उसका आंसर नहीं था, सही में नहीं था। 7 दिनों के शिविर में मुझे वो पता चला कि गंगा से पाप धुला जा सकता है। उतनी समझ आ गई 7 दिनों में, और वही समझ मैं आपके सामने रखने के लिए सोच रहा हूं कि एक कल्पना के अंदर अपने अंदर वहां पे है, गंगा निकली कहां से? शिव जी के मस्तक से निकली। उतना पता है, जब गंगा के अंदर हम लोग नहाते हैं तो पाप धुल जाते हैं। तो वो गंगा का जो पावर है वो आज 7 दिन में सोम भैया आपने दिया, और वो ज्ञान गंगा जो अपने विचार स्थिर करते हैं, अपनी समझ स्थिर होती है, तो अपने अंदर भी गंगा है और वही गंगा से हम लोग पाप धुला जा सकते हैं। क्योंकि वहीं पे फंसा हुआ था, एक चीज वो पता चली। एक दूसरी चीज ऊर्जा के बारे में बोलूं, मैं इंजीनियरिंग फील्ड का हूं, तो एक चीज मुझे समझ में आ रही थी, मोबाइल ले लो, फैन ले लो, कुछ भी ले लो, वो ऊर्जा से चलती है, सापेक्ष ऊर्जा से चलता है। लेकिन वही ऊर्जा निकाल दो तो अपना मोबाइल ही डेड हो जाता है। तो उसकी जो पात्रता है उस हिसाब से उसके ऊर्जा लेते हैं। तो वही चीज है ज्ञान ऊर्जा। अपने के लिए भी ज्ञान ऊर्जा चाहिए, जो आज सोम भैया ने ज्ञान ऊर्जा दी है, तो पावर भी बढ़ा, ज्ञान भी बढ़ा थोड़ा थोड़ा, और उस पे जाने का, जीने का रास्ता भी मिला। अभी एक छोटी सी लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, जिंदा और जीने का। सोम भैया ने 7 दिन में एक चीज बोली, जिंदा रहने का सामान जीने में काम नहीं आता है। सोम भैया एक दूसरी चीज उससे ही मुझे थोड़ा समझ में आया, जब आपने लिखने का बोला तब मैंने ऐसा लिखा, जीने का सभी, क्या बोलेंगे हम लोग, सामान जिंदे रहने में काम आता है। सही में बोलो तो मैंने ऐसे ही लिखा था, पर उसको मैंने करेक्ट किया 7 दिनों का मंथन करने से। जीने का सभी समाधान जिंदा रहने के लिए काम आ रहा है। चीज नहीं है वो, समझ है, समाधान है। और मैं दिलों से सोम भैया, दशरथ भैया, दिनेश भैया और समत परिवार सभी लोग को मैं मेरा खूब खूब आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी को प्रणाम। भैया जी नमस्ते। मेरा परिचय, मैं दीपक। इसमें थोड़ा ऐसा है कि जो भी लोग परिवार के साथ आए हैं, शायद प्रस्तुति कोई एक लोग रखे, लेकिन उनका परिवार साथ में आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार मतलब कम से कम सबको मालूम रहेगा कि कौन परिवार के साथ कैसे है। तो जरा हम सोम भैया सभी परिवार के साथ आए हैं। और एक दूसरी चीज सोम भैया, मैं सभी के साथ कन्फेस करता हूँ कि आज की तारीख में मैंने एक भी शिविर अटेंड नहीं की है। रीजन एक ही था कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे। ये शिविर से काफी कुछ मिला, जो रियल टर्मिनोलॉजी में जीवन विद्या जो बोला जाता है, और वो भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि शिक्षा के अंदर कैसे लिया जा सकता है। तो मेरी एक खुद की स्वीकृति बनी है कि जाके, मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस पर थोड़ा वापिस से बुक लिखना चालू करूं, क्योंकि जो पढ़ा है वो मटेरियलिस्टिक है। और एक दूसरी भी चीज आज रास्ते में ही मुझे थोड़ा ध्यान में आया था, कोई भी साइंटिस्ट ले लो, रूल्स बना है,
वो निकला तो सृष्टि से ही है। और एक दूसरा चीज हम हर बार बोलते थे, रिसर्च फील्ड में हूँ, सर्च नहीं कर सकते, अस्तित्व में ही है, रिसर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। भैया एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड मुझे हर बार ये कहते थे कि पति पत्नी का रिश्ता दोनों को पूर्ण करने के लिए होता है, लेकिन आपकी शिविर पढ़ के अभी पता चल रहा वो पूर्णता क्या है। थैंक यू। मेरा नाम दीपक खैरनार है। मैं महाराष्ट्र नंदुरबार बाय प्रोफेशन में प्राइमरी टीचर हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में मैं प्राइमरी टीचर हूँ। मेरी एज अभी 35 है। मेरा ये दूसरा शिविर है। पहले शिविर की अगर उपलब्धता देखी जाए तो जिस तरीके से भैया खुद कहते हैं कि पहले शिविर में सिर्फ सुनना होता है, तो लगभग कुछ वैसी ही बात हुई है। सुनने के लिए तो काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा था, लेकिन आचरण में बहुत कुछ पहले शिविर से मैं नहीं ला पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक छोटी सी बात कही भैया, मतलब ये बात तो है कि अपने भाव और विचार अपने नियंत्रण में आ जाए और मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। ये 2 लाइन भी अगर मैं पकड़ पाता एक साल में तो ये मेरे लिए अपने आप में उपलब्धि होती थी, लेकिन वो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो हो नहीं सकी है। लेकिन अभी ये बिल्कुल समझ में आया है कि मेरे भाव और विचारों का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। ये जो शिविर, ये जो मतलब टैगलाइन है अपनी, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, मतलब समझ के साथ अगर देखे जाए तो ये एक सेंटेंस ही अपने आप में बहुत कुछ बड़ा है और यही कुछ कहलाता है। पूरे प्रकृति में हर कोई चीजें एक व्यवस्था में है और पूरे व्यवस्था के संबंध में अपनी भागीदारी वो जानता है। तो ये भी मैं अगर समझ पाया कि परिवार में मेरी भागीदारी क्या है और समाज में मेरी भागीदारी क्या है, तो ये काफी अच्छी तरीके से अभी क्लियर हुआ है। मनुष्य परिवार में आचरण के साथ सीखता है, तो इसका एक उदाहरण दशरथ भाई और आपका समर्थ पूरा परिवार है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जहाँ से हम लोग मेरी जर्नी यहाँ पे आने के लिए शुरू किया है, वहां से मतलब फोन में कांटेक्ट करके कि आप यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, ये सब चीजें और इस तरीके की पूरी व्यवस्था समर्थ डायमंड, दशरथ भाई और उनका परिवार, उनके सभी कंपनियों के सभी एम्प्लॉय ने की है। तो आप सभी का काफी मतलब तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और यही आचरण अगर मैं ला पाऊँ तो वो मेरे लिए उपलब्धि होगी। स्कूल में फिलहाल मैं भी ये कर रहा हूँ कि मेरे पास 1st to 4th तक के बच्चे आते हैं, तो उनको पढ़ाते वक्त अभी मैं थोड़ा उनके साथ ये बात करता हूँ कि आपको क्या करने से अच्छा लगता है। और ये जब मैं अभी उनसे पूछ रहा हूँ तो उनको मैं ये बताता हूँ कि आपके घर में अपने मम्मी पापा के साथ अगर आपने क्या किया तो उनको अच्छा लगेगा। तो एक मेरा ग्रुप बनाया है, तो उसमें वो हर रोज सुबह उठने से छोटी छोटी काम वो खुद कर रहे हैं। मम्मी पापा को काम में मदद कर रहे हैं। अपना जो मतलब सोने का सामान है वो अच्छी तरीके से घड़ी करके रखना, खुद की प्लेट उठाना, मम्मी पापा को पानी देना, घर की साफ सफाई करना। तो ये सब बातें वो कर रहे हैं 1st to 4th के बच्चे, और उनकी शेयरिंग भी मेरे साथ हो रही है। तो उनके पेरेंट्स भी अभी आके बोलते हैं कि हम लोग तो एक्चुअली ये चाहते हैं। जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ आदिवासी एरिया है, वहाँ पे ड्रिंकिंग का प्रमाण बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे बच्चों को खुद ब खुद घर का वातावरण थोड़ा मतलब डर लगता है। ऐसे वातावरण में हूँ तो उन बच्चों के साथ उनको जीना मैं सिखा पाऊँ और सिखाऊंगा। जिस तरीके से कंटेंट मिला है तो वो अभी आचरण में लाना है। अगर अपेक्षा ये है आगे तो अध्ययन तो पूरा करना ही है, लेकिन थोड़ा प्रोफेशन की वजह से कंटिन्यू वो नहीं कर पाऊंगा। तो मई महीने में या फिर दिवाली में अगर कुछ हो पाए तो वो बिल्कुल, अगर उस तरीके से अरेंजमेंट हुई तो बिल्कुल वो करेंगे। और स्कूलों के लिए अगर कुछ कंटेंट डेवलप होता हो तो उसकी जानकारी अगर हमेशा आगे मिलती रही तो उसके लिए भी मैं अग्रसर रहूंगा। तो फिर से एक बात आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, सोम भैया का भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, आपका जो शिक्षा के प्रति है तो उसके लिए अपन 1-to-1 परिचय में रहेंगे। तो काफी काम शिक्षा में हो रहा है, और दीपावली पे जो भी शिविर हो रहा है वो दीपावली के शिविर के टाइम पे जो भी जिसने 2-3 शिविर किया है और शिक्षा में कुछ भी है तो वो उसके लिए पैरेलल, जैसे नीचे अभी कोई एक पुस्तक चल रहा है वैसे दीपावली के टाइम पे पैरेलल वही शिविर वैसे भी चलने वाली है। तो वो हिसाब से शिक्षकों के लिए वो भी एक चांस है, बराबर, और अपन संपर्क में रहेंगे। नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग। यहाँ उपस्थित जीवन विद्या में सोम भैया, दशरथ भैया, दिनेश भैया,
समर्थ के पूरे परिवार और यहाँ पूरे विश्व में से, ये देश में से आने वाले सभी परिवार को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी पहले दिन से या शिविर से आने से पहले हमारे परिवार में से बहुत कुछ लोग पहले शिविर की थी और उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये शिविर ऐसी चलती है और उसमें से कुछ जीवन में कुछ मिलता है। फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा विचार आता था कि ये बार बार कह रहे थे कुछ तो होगा, चलो जाके देख तो लेते हैं, फिर देखेंगे, सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर यहाँ आए और फर्स्ट डे पहले तो ऐसा लगता था कि किसी लोगों ने ऐसा कुछ ने कहा कि किसी को फ्रस्ट्रेशन है, माइंड में कुछ मीन्स उनको अच्छा नहीं लगता, मीन शांति चाहिए, इसलिए वो जाते होंगे। लेकिन फिर यहाँ आके पता चला कि तो सही अर्थ में कुछ अलग ही है। धीरे धीरे फर्स्ट डे निकला और फिर भी मुझे ये टॉपिक की शुरुआत की, वहां से सुम्बैया ऐसा लगता था कि ये जा तो बहुत सही रहा, लेकिन ये कहाँ जाके रुकेगा। बार बार मैं मेरे परिवार को पूछता था कि लक्ष्य प्राप्ति वो क्या है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था ये वही होगा वही होगा वही होगा। फिर भी एक सब बोल रहे थे कि रुको रुको आएगा वो दिन। फिर आपने कहा कि नेक्स्ट दिन आप ईश्वर दर्शन कराने वाले, तो मैंने कहा कि ये क्या होगा यार। फिर भी ऐसा पढ़ने में और देखा था कि गीता में कहा है कि जब भी कृष्ण को प्रॉब्लम आया उस वक्त कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन किया और वो तो उनकी एबिलिटी थी इसलिए उसको विश्व दर्शन करवाया। लेकिन हमारी भी एबिलिटी हो सकती है, वैसा मेरे दिमाग में क्वेश्चन हुआ। फिर आपने यहाँ आके ये बोर्ड पर विश्व दर्शन किया करवाया, तो फिर हमको पता चला कि ये मानव होकर अभी हम विश्व दर्शन कर सकते हैं और वहां तक वो एबिलिटी तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हम बोले तो ये पूरे 7 दिन मेरे लिए तो बोले कि बहुत ही बढ़िया रहा। और अभी चल रहा है कि मानसिकता, आपने बहुत बार बार कहा कि स्टेट ऑफ माइंड, जो आपके दिमाग में से और आपकी वाणी में से कहें कि ज्ञान की गंगा और माँ सरस्वती की वाणी बोलो, पवित्रता, एक एक शब्द आपके बहुत ही वैल्यूएशन है और जो भी सेंटेंस आते थे वो दिमाग में ऐसे चिपक जाते थे। तो ऐसा चलता है कि ये बार बार इसको सुने और धीरे धीरे पहले दिन से ही सुख की प्रतीति हो रही है, ऐसा लग रहा था। कि फिर आपने कहा कि कोई भी समस्या है कि वो समस्या नहीं है, लेकिन उस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं होना, वही एक पहली समस्या है। तो धीरे धीरे ऐसे आपने बहुत ही क्लियरिटी की कि जिंदा और जीने का क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में हमने यहाँ से पता चला, क्यों आए, किस लिए आए, क्या करना है, वो सब आपने क्लियर कट विजन रोड मैप है बता दिया। और फिर भी उसमें पूरा कहा कि ये सब है, आपको तय करना है, खोज करना है। तो ये पूरे 7 दिन में ऐसा लग रहा है तो ये तो एक रास्ता आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी उसका सब स्टडी वगैरह तो हमको जो वहां तक पहुंचना है तो हमको ही करना पड़ेगा। और हमारे परिवार की गोष्ठी के जो थे वो भी खूब, हमारे गोष्ठी में भी बहुत ही बढ़िया मजा आया। और आगे पूरे समर्थ परिवार, सोम भैया आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नमस्कार सोम भैया, दशरथ भाई और मेरा ये समर्थ परिवार और सभी भाई बहनों, मेरा शतशः प्रणाम। अभी मैं तो टीचर हूँ और विद्यादान का ही काम करता हूँ। अभी मैंने 32 साल विद्यादान का काम किया। अभी ये 7 दिन में मुझे ये पता कि मैंने जो विद्यादान किया वो लेकिन जिंदा रहने के लिए किया है, वो जीने के काम में कुछ भी नहीं है। अभी मेरे को समझ में आया, मैं बहुत बार, मैं कोई ज्यादा किताब रखता नहीं, कोई पढ़ाई करता नहीं, कोई पेन में लिखता नहीं, पर जो बोलता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे एक समझ में आया, कोई भी कार्यक्रम हो, अपने घर में शादी हो, कार्यक्रम हो,
वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। दशरथ भाई जैसे उनका समर्थ परिवार, यहाँ की प्रॉपर फैमिली, उसने जो सहयोग दिया, इस सहयोग से जो अपना शिविर पार पड़ा। अभी मैं घर एक मंदिर है, विद्या एक मंदिर है और भगवान एक मंदिर है। अभी मैं जब मुझे विद्या दान के लिए अभी जिंदा रहने का सामान, जीने का काम नहीं आता, उस पे एक बात समझ में आई, जो आप आपने जब लिया है वो अपने काम का नहीं है। अभी उससे मुझे घर तो एक मेरा मंदिर है ही है, मैं अपने गांव का मंदिर, भगवान के मंदिर, उससे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है। अभी मेरा एक ही ध्येय है, विद्यालय मंदिर कैसा बने। उससे मैं अपने से मैं मेरा जो अपना कमाई का 10% हिस्सा दशरथ भाई जो बड़े लोग हैं उनके साथ सहयोग करके मैं एक विद्यालय मंदिर बनने का मेरी सोच है। और वो विद्यालय में जो जीने की जी विद्या है उससे थोड़ा ड्राइपर्स करके अपने जो अभी मेरा कोई रिटायरमेंट का कार्यक्रम हुआ जिला परिषद में, उसमें अपना जो संचालक रहते हैं जो अपना विद्या का जो पढ़ाई करते हैं उसमें क्या चेंज ला सके, उससे थोड़ा पास प्रयास करूंगा। अभी उसके बाद मैंने पहले से जब मेरी माँ गुजर गई थी तो मैंने 50,000 रुपए का एफडी स्कूल के नाम पे रखा था। और जो एफडी का जो ब्याज आएगा, वो ब्याज आने के बाद उसमें जो फर्स्ट से जितना उस पर क्लास है, जिसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, उसको उसके जो फीस है वो भरने का, और जिसको जरूरत हो उसको पूरा करने का। बाद में मैंने पिता के नाम पे 50,000 रखा है। अभी जो मैं स्कूल में काम करता हूँ उधर हम बच्चों को लिए दोपहर का खाना देते हैं, और वो खाने के लिए मैंने और मेरा एक सहयोगी मित्र है और 2-3 लोगों ने एक अपना किचन, बढ़िया किचन बनाया कि उसमें खाना अच्छा पके, सामान से पके, गैस सिलेंडर वो सब बर्तन वो किया है। अभी मेरे को हर जगह में, हर मोहल्ले में, हर गांव में अपना विद्यालय मंदिर कैसा बने ये मेरी सोच है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विद्यालय मंदिर बनाने के लिए खुद को कारीगर बनना पड़ेगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार गामी है। मैं पेशे से वेटरनरी डॉक्टर हूं, लेकिन अभी प्रमोशन की वजह से मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज पे हूं। मेरा नेटिव पालनपुर है और मेरा जॉब अहमदाबाद में है। पोषक भाई मेरे क्लासमेट में रहे हैं और उन्होंने काफ़ी साल से मुझे इसके लिए इंट्यूशन देने का प्रयत्न किया, पिछले 4-5 साल से, ज़्यादा समय से। लेकिन जो भी मेरे नसीब में जब तब तक नहीं था, लेकिन इस बार तो उन्होंने ज़्यादा प्रेशर करके मुझे बताया कि एक बार नज़दीक में है, आओ देखो। और मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने अब तक कभी भी कोई ऑनलाइन ये यूट्यूब में देखने का प्रयत्न नहीं किया, और यहाँ आने के बाद ही पता चला। अब तक मेरी सोच ऐसी थी और मैं ऐसा समझता था कि सहानुभूतिशील से जीने का जो टारगेट है सभी का, वही एक अच्छा बनने का एक एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो पूरा नहीं है। यहाँ आके पता चला कि वो सफिशिएंट नहीं है। सभी लोग सहानुभूति से जीने का प्रयत्न करते हैं, उससे अच्छा लगता है और अच्छा बनने का प्रयत्न करता है, और सभी को लगता है कि मैं इससे कुछ अच्छा करता हूँ, अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। उससे आगे काफी यात्रा हमारी बाकी है और वही यात्रा हमारा मेन गोल रहना चाहिए। बात करने के लिए तो काफी बहुत मैंने लिखा है, लेकिन ये टाइम कंसेंट की वजह से सभी नहीं बताएंगे। लेकिन अब तक ऐसा था कि सभी लोग सामान से सम्मान की प्रयास में थे और सुविधा से सुख पाने का प्रयत्न करते थे, और मैं भी उसी में से एक था। और सभी और भी लोग काफी यही पे होंगे, लेकिन सभी का ये मानना अभी अधूरा है। लेकिन अभी
सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, जीने का प्रयत्न करना है और मैं अपने आप में जीने का आचरण ला सकूं और मेरे आचरण से सभी लोग इस शिविर में या तो इस अध्ययन में या तो इस सोच में आए, ऐसा मैं प्रयत्न करता हूं। और ये सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जिंदगी को भी और मानव को भी क्लासरूम में लाके समझाया जा सकता है और समझ सकता है और इससे सभी का कल्याण और प्रकृति में संतुलन आ सकता है। मेरे साथ मेरे धर्मपत्नी जी भी आए हैं, तो उनको साथ भी लेके आया हूं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कॉरपोरेट ऑफिस मतलब कॉरपोरेट कल्चर में इतनी सहानुभूति और इतना उनके जो एम्प्लॉय है और इनके सभी के लिए इतनी एक ऊंची सोच हो सकती है। क्योंकि मेरी समझ में ये है, मैं बेसिकली गुजराती हूँ, तो काफी शायद कोई वर्ड गुजराती में भी आ सकता है, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था। आपके ये डायमंड का बिजनेस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली अप टू 70% जो आपके एम्प्लॉइज है, आपके यहाँ काम करते हैं, वो शायद उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास का होगा, सोशल और इकोनॉमिकल भी बैकग्राउंड उनका लोअर मिडिल क्लास में है। आपके यहाँ टेक्निकली साउंड और एजुकेशनली साउंड लोग होंगे, लेकिन उनका परसेंटेज शायद बहुत ही कम होगा। और इन सब के साथ आप इतने अच्छे से, मतलब किसी को भी मिले, अगर वो आपका ब्रांच पालनपुर में भी है और सतलासना में भी है, जो भी लोग हमें मिले, सभी से ये इतनी शेयरिंग हुई और उन्होंने ये कंपनी के बारे में जो बताई, और उससे क्या मेरा दिल पूरा भर गया। और आपके परिवार की जो सभी लोग यहाँ है, ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, जो ये थिंकिंग है, वो शायद मैंने आज पहली बार देखी है। किसी कॉर्पोरेट कल्चर में ये सब हो पाना मुझे एक स्वप्न जैसा ही, अभी तक स्वप्न जैसा ही लग रहा है। तो शब्दों से मैं आपका इसका धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दशरथ भाई, दिनेश भाई, गोविंद भाई शायद याद नहीं है, आपके जो ये पुत्र है आपके एब्रोड में है, ये जो भगवती बहन, ये माता जी, सभी आपके जो आप बैठे हैं, उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय आदरणीय नागराज जी, जीवन विद्या परिवार, समर्थ परिवार और हमारे प्यारे सोम भैया जी, सब लोगों ने अपना अपना आभार जो कुछ भी है वो इनके प्रति प्रकट किया है। क्योंकि यहाँ जो जीने का जो सामान मिला है, तो कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता, लेकिन सबके अंदर तो है कि नहीं? तो हमारी कृतज्ञता जो है वो हम इन लोगों के प्रति कैसे व्यक्त करें। तो मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि आज तक जितनी भी बार सोम त्यागी जी यहाँ आए हैं, उन्होंने सभी को नमस्कार किया है। अब हम सभी उसको नमस्कार करें, ये हमारी कृतज्ञता। नमस्कार, नमस्कार। सोम भैया के लिए नमस्कार, समर्थ परिवार के लिए नमस्कार, आदरणीय नागराज जी, जीवन विद्या परिवार के लिए नमस्कार। आपको अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपके पैर छुए, ये छुए, लेकिन जो पैर छूता है वो भी उसकी कृतज्ञता का ही भाव होता है, लेकिन हम बस ऐसे ही व्यक्त करते हैं। शिविर से पहले की मैं जो बात करूं, तो सबसे पहले तो सबको यही होता है कि भाई अपने जिंदा रहने का सामान इकट्ठा करो, कहीं कम न पड़ जाए या कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो पहली तो यात्रा तो वही से शुरू होती है। थोड़ा थोड़ा जिंदा रहने का सामान ठीक ठाक होने लगता है, सब होता है, तब ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। तो मुझे भी दिखने लगा। तो एक दिन मैंने भी एक लाइफ का गोल डिसाइड किया कि भाई मैं कौन हूँ ये जानना है। बहुत सारे जब गोल डिसाइड किया तो जर्नी शुरू हुई तो आगे बढ़े तो पीछे बढ़े। जो कुछ भी किया, मतलब उसको पाने के लिए उसकी दिशा में जहां जहां रास्ता दिखा, लेकिन भ्रमित अवस्था, जैसे भ्रमित मानव बोलते हैं, तो गलतियां तो होगी। मैंने यहाँ शिविर में आने से पहले एक्चुअली जीवन विद्या का कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखा था, कोई सुना नहीं था, कुछ नहीं था। वैसे ये सब समर्थ परिवार हमारे फैमिली जैसे है। तो एक बार यहाँ ध्वनित भाई आए थे, तो शीतल मेरी वाइफ है, वो ध्वनित की बहुत फैन है, तो बोले मुझे तो जाना है ध्वनित को सुनने। तो मैंने कहा चल तुझे जाना है। तब तक मुझे पता नहीं था, सच बताओ कि जीवन विद्या परिवार वगैरह क्या है,
लेकिन ध्वनित आया उसके पहले यहाँ वीडियो चल रहा था और छोटे छोटी क्लिपिंग सोम त्यागी जी की चल रही थी। जब वो मैंने देखी तो मुझे कनेक्ट हुआ कि यार कुछ बात बनती है, मुझे जाना चाहिए शिविर में। फिर प्लान बना और मैं उसी वजह से यहाँ आ पाया। तो ये आगे की शिविर की यात्रा है। शिविर के दौरान की जो बात करूं तो मुझे जो सबसे मतलब नया लगा, तो एक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये जो गुड बातें हैं इसको कोर्स और कंटेंट के रूप में भी बनाया जा सकता है। ये मैंने कभी नहीं सोचा। अभी तो ये कंटेंट में से शायद मैंने 1-2 लिटी ही पढ़ी है, मैंने पूरा कंटेंट तो नहीं देखा है, लेकिन बहुत बहुत बड़ी बात लगी कि इसको कंटेंट के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये जितने भी लोगों ने प्रयास किया है उसके लिए भी नमस्कार। जिन लोगों ने उसके लिए प्रयास किया है तभी तो बना है। एक के प्रयास है तो नहीं बना है, सभी ने प्रयास किया है। तो ये मेरा भाव है। फिर मुझे दूसरा ये लगा कि परिवार और समाज ये भी चेतना की पूर्णता में क्या सहयोगी हो सकते हैं, ये आज पता चला कि भाई परिवार और समाज चेतना की पूर्णता के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, उसकी व्याख्या डेफिनेशन क्लियर हुई। फिर भी मैं बोलता हूं काफी कुछ समझ में आया है, काफी कुछ समझ में नहीं आया है। अभी विद्यार्थी है, शुरुआत की है, पता नहीं क्या है। लेकिन अब आगे मुझे ये लगता है कि देखो भाई सोम भैया ने तो पूरा कोर्स चला दिया जो चलाना था, किसका छूट गया किसका रह गया तो अलग से ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो अलग से ट्यूशन के बगैर तो होगा नहीं। तो जैसे कल हम गोष्ठी में मतलब बैठे थे तो ध्वनित भाई हमारे साथ थे, तो एक ट्यूशन उन्होंने ले लिया करो। तो उन्होंने पूछा सबको कि भाई आप लोगों को क्या समझ नहीं आया, तो सभी का पूछे बोलो क्या क्या समझ नहीं आया। तो मेजोरिटी लोग ने ऐसा बोला कि भाई ये जीवन क्रिया जो है 10 क्रिया है, ये हमको समझ नहीं आता, ये 4.5 क्या है 5.5 क्या है। तो ध्वनित भाई ने बहुत अच्छी तरह से गुजराती में समझाया। तो मुझे लगा कि वो जो भी लोग वहां बैठे थे उनका कंटेंट क्लियर हो गया, वो बहुत अच्छी बात हो गई। तो मुझे ऐसा अभी लगता है, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 4.5 क्रिया में तो हम जी रहे थे और आगे की जो 5.5 क्रिया है उसमें जाने की जो चाबी है, वो जो चाबी दरवाजा खोलती है वो NDS है, न्याय धर्म सत्य। ये चाबी लगी तो आगे जाएगा। ये चाबी ठीक से लगानी है और ये चाबी ठीक से लगाने के लिए अपनी समझ को ठीक करने के लिए छूट गया है, इसके लिए बाकी का जो प्रयास है, बाकी का जो ट्यूशन है, उसके लिए मुझे लगता है कि गोष्ठी से अच्छी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि बेमन से भी आओ लेकिन गोष्ठी शुरू करो, बाकी की बात आगे बढ़ सकती है। मतलब ये गोष्ठी में क्या है, कभी कभी हमारे बहुत से डाउट क्लियर हो जाता है। और देखो सभी विद्यार्थी है, देखो जब 2 विद्यार्थी साथ में पढ़ते हैं तो एक को कुछ आता है, एक को नहीं आता तो दूसरे को सिखाता है, दूसरे को नहीं आता उसको सिखाता है, दोनों का क्लियर हो जाता है ना। गोष्ठी वही तो है और क्या है। तो गोष्ठी से हम सब कुछ ना कुछ पा सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल गया हूँ बहुत, तो मेरी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। शीतल को कुछ कहना है तो दो। मुझे सब आ गया, मुझे अलग से कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। हेलो, रमेश परमार, ઊંઝા કોલેજમાં પ્રોફેસર છું, ગુજરાતીમાં બોલું છું। હું આ શિબિરમાં મારા મિત્ર મહેન્દ્રભાઈ પટેલ એમના થકી અહીં આવ્યો છું અને જ્યારે આ શિબિર જોઈન કરી એ પહેલા મારા મગજમાં એક ભ્રમ હતો કે ભૌતિક સુવિધાઓ જ જીવવા માટે જરૂરી છે, પરંતુ આ શિબિરમાં જોડાયા પછી મને એવું લાગ્યું कि आ भौतिक सुविधाओं जिंदा रहने के सामान है, जीने का नहीं है। जीववा माटे शू करवुं जोईए, कई रीते जीवવું જોઈએ એ આ શિબિરનો મને અહીંયા જાણવા મળ્યું છે। સારું આચરણ,
ખુદમાં હોવું જોઈએ. એ આચરણના થકી પરિવારમાં આવે, પરિવારમાંથી સમાજમાં જાય, તો જ બધા સુખી થાય, એવું મારા આ શિબિરનો હાર્દ છે. માનનીય દિનેશભાઈ પટેલ કે જેઓ એમની રીતિ ભાતી, એમની સહજતા એમના તરફથી જોઈએ તો એમને ઘણા રૂપિયા છે, ઘણું બધું છે, તેમ છતાં આપણા માટે, આપણા સમાજ માટે જેમને આ કાર્ય કર્યું છે, તો એમને પણ હું લાખ લાખ સલામ કરું છું. અને આવા સોમભૈયા જેવા વક્તાઓ, જ્ઞાનનો ભંડાર છે, એ ભંડાર આપણને અહીંયા પીરસ્યો છે, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ. અને હવે હું પણ મારું સારું આચરણ કરીશ, મારા પરિવારમાં કરાવીશ, સમાજમાં કરાવીશ, એવી ઈચ્છા છે. થેન્ક યુ.